एंड व्हेन आई ओपन द स्टिच लाइन पूरी सब बस हो रखा है और बिल्कुल हीलिंग नहीं हो रखी है। मैंने अभी देखा एक केस जिसमें एक मदर थी जो बिल्कुल भी अपने बच्चे को गोद तक लेने में तैयार नहीं, अटैचमेंट हाँ नहीं बिल्कुल, वो बच्चा रो रहा है और वो उसको देख रही है पर उसको उठा नहीं रही है। कुछ लॉसेस होते हैं जिसको इंट्रायूट्राइन हो जाते हैं, मतलब मदर 7 मंथ 8 मंथ प्रेग्नेंट होती है तब लूज कर देती है बेबी। कई बार फीमेल्स को ये ब्लेम कर दिया जाता है कि इनकी लापरवाही से हो गया, इन्होंने ऐसा किया इस वजह से हो गया। बॉयज आर जस्ट नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट पीरियड्स और डिलीवरी और प्रेगनेंसी। जो सेंसिटाइजेशन हम बचपन में डेवलप कर लेते हैं वो हमारे आने वाली जनरेशन्स को बहुत इफेक्ट करता है। एक आदमी भी बहुत हेल्पलेस फील करता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी वाइफ खुश रहे, या तो मुझे लगता है ये एक मेल के मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा टोल होता है एक फीमेल की प्रेगनेंसी। आई थिंक बोथ आर प्रेग्नेंट, कहते हैं ना इवन वी आर प्रेग्नेंट। उसको कई बार ये भी लगने लगता है कि हमारे पार्टनर्स डिविएट ना कर जाएं, किसी और में इंटरेस्टेड ना हो जाएं बिकॉज आई एम नॉट एबल टू बी प्रोवाइड दैट लेवल ऑफ इंटीमेसी। हमने IIT बाबा के बारे में बहुत सुना है, उनके इंटरव्यू में ये आया था कि he had a very bad and rough childhood। क्योंकि मैरिज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का एक बहुत मजबूत स्तंभ हुआ करता था, तो लेकिन वो स्तंभ हमें कहीं डगमगाता हुआ था। Hello everyone, this is Dr. Pragya Gupta, consultant obstetrician and gynecologist. I welcome you to my podcast channel, and today we have with us a very special guest, Dr. Manini Srivastava, who is a head of psychology department and Institute of Women's Studies in Lucknow University. She has written 8 books and she has done a lot of work towards women's psychology. She's also been running PG diploma courses and also courses on Garbh Sanskar, and it's been 19 to 20 years of experience in research, counseling and teaching. So welcome ma'am to my channel. And in this podcast we'll be discussing about various stages of women. Let us first start with pregnancy, which is a very essential stage in every woman's life. So जब एक माँ pregnant बनती है then she undergoes lot of emotional and physical changes. By physical changes हम सबको पता है जब especially in the first trimester एक औरत को उल्टी आना, morning sickness, her stretch marks is a problem, then her डाइट गोज ऑफ ट्रैक, उनको कुछ खाने का मन नहीं होता है, टेस्ट बड्स चेंज हो जाते हैं, and her mood swings is a very big problem. So among all these problems the women face a lot of anxiety because in today's scenario हमारी society is going more towards neutral families. अब joint families का culture भी चला गया है where ladies के पास बहुत सारे guidance होते थे. They had their mother-in-laws and sister-in-laws telling them about how to cope up, how to deal with such issues. But in today's world they just have their gynec or their psychiatrist, psychologist at their part who can tell them about कि आप कैसे cope up कर सकते हो उन चीज़ों से. So a little light on how to identify first of all कि a pregnant woman is undergoing such kind of anxiety issues and how can she cope up with this. You have raised a very nice topic, and I think so that during pregnancy usually this depression is taken as mood swings. Yeah. Right, and it is what you can say is dismissed as mood swings कि ये तो होता ही है, तो उसमें क्या कर सकते हो, ये तो पार्ट एंड पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी है. लेकिन ऐसा नहीं है. हमें थोड़ा सा इसमें कॉशन ये देने की ज़रूरत है, कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि अगर ये लंबे समय तक है and the person is feeling constantly anxious and the person is feeling disconnected with the baby inside, yes, and the person is sad always, then we need to think that there is something more than normal mood swings which a pregnant woman faces. इसमें ऐसा हो सकता है कि the person is going through depression, yeah, and antenatal depression जिसे हम कहते हैं. So अगर ऐसे if the time period is more, then we need to be cautious, take it as something serious, and then the first thing is that when first we have acknowledged, जब हमने उसको acknowledge कर लिया है, then sharing. It is very important to share it with your doctor. आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करिए. Then आपका लाइफ पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने पार्टनर से बात करिए कि इट इज़ अ वेरी गुड फेज ऑफ लाइफ प्रेगनेंसी एंड इट इज़ समथिंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट. लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि हम जो है दुखी हैं या फिर एंग्जाइटी में हैं या कॉन्स्टेंटली हमें उलझन सी हो रही है.
तो these are the symptoms which हमें notice करके and we need to talk about them. एंड मैम प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी इमेज भी बहुत चेंज हो जाती है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स बन रही हैं. वेट गेन, स्ट्रेच मार्क्स, देन हेयर फॉल, समटाइम दे गेट पिंपल्स ऑल्सो, मेलाज्मा होने लग जाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, एंड बॉडी इमेज भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है. सो डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ एंजाइटी इन दिस स्टेज? Yes, very true. ये एक बहुत important reason है क्योंकि हमारे पास सोसाइटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है ऑफ आर फिजिकल अपीयरेंस, और प्लस हमारा पर्सनल भी एक कॉन्शियस हर इंसान रहता है कि फिजिकली वो अच्छा दिखे. तो उसमें जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा हमारे अंदर कई बार एंजाइटी आती है. और इसको डील करने के लिए मुझे लगता है कि हर फीमेल को ये सोचना चाहिए कि इट इज़ नॉट द बॉडी ओनली विच मेक्स देम right. Body is just a vessel of love, strength and many more things. और केवल उसको एक अपीयरेंस की एक जिसको कहना चाहिए कि पार्ट मानना कि अगर हमारी बॉडी अच्छी नहीं दिख रही है तो एवरीथिंग इज फिनिश्ड एंड आई डोंट लुक गुड एंड देन आई नीड टू बी एंग्शियस एंड सैड. नो, इट इज समथिंग मोर. आपकी बॉडी आपको बहुत सारी चीजें दे रही है. इस बॉडी की वजह से ही आपकी एक नया मेंबर भी आप में ऐड होने जा रहा है. तो उसके संग कुछ कुछ चेंजेस आएंगे जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. दे आर जस्ट इन दैट फेज एंड दे विल डिसअपियर एज सून एज द फेज गेट्स ओवर. तो वो धीरे धीरे 1-2 साल में वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी. एंड द प्रेगनेंसी ग्लो जो हम कहते हैं मैम, जो बहुत एक हाइप कर दिया गया है, बिकॉज हमें पता है कि प्रेगनेंसी में जितने ये फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, वो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से हैं. कुछ की स्किन डेफिनेटली ग्लो करती है बट इट इज़ नॉट द सेम विद ईच एंड एवरी प्रेगनेंसी. एंड जो लेडीज होती हैं ये मेरे क्लिनिक पे भी बहुत बार आती हैं कि मैम आई एम नॉट गेटिंग दैट ग्लो, आई एम गेटिंग पिम्पल्स. And my husband has started pointing it out. My in-laws have started pointing it out. So it's not more than her. Actually, the society makes her feel कि आप में कुछ गड़बड़ हो रहा है अंदर आपकी बॉडी में. And then she also, मैंने एक चीज़ और नोटिस की मैम कि because breast gets heavier, your pelvic area gets heavier. So उनको लगता है कि मेरी बॉडी तो अब सेम होने ही नहीं वाली है कभी, हम चाहे कितना भी समझाएं उनको. तो रोल ऑफ पार्टनर एंड फैमिली का कितना होता है इसमें? बिकॉज पार्टनर ही समझा सकता है बाय गिविंग लव, बिकॉज उसको तो इनसिक्योरिटी स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी में मैंने देखा इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर. मुझे लगता है मेरी बॉडी में चेंज हो जाएगी तो आई विल नॉट गेट द सेम लव फ्रॉम माय partner or my friends maybe, and I will not be able to wear the same dresses. So what is the role of the society in this? Very important role of the partner, the family as well as the society. सबसे पहले आप ये भी देखेंगे कि एक ये भी मिथ आता है कि कहते हैं कि अगर लड़का है आने वाला है तो वो स्किन ग्लो करेगी, और लड़की है मतलब इट इज समथिंग, एक ये भी मिथ चलता है. तो पहले तो हमें इस स्टिग्मा से बाहर निकलना चाहिए कि हम इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे. और सेकेंडली जो है इसमें पार्टनर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि द फीमेल में हर तरह के चेंज आते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो, चाहे अपीयरेंस में चेंज हो. तो द पार्टनर नीड्स टू बी मोर एक्सेप्टेबल. उसको ये समझना चाहिए कि माई वाइफ इज अंडरगोइंग लॉट ऑफ चेंजेस एंड इट इज समथिंग टू ब्रिंग, इसलिए है क्योंकि हमारी लाइफ में एक नया मेहमान आने वाला है. तो आई नीड टू बी मोर सपोर्टिव. सेकेंडली फैमिली को भी ये सोचना चाहिए कि इस समय मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट वुमेन की. तो अगर हम उसे मेंटली कहीं पे भी ट्रॉमेटिक रखेंगे या उस पर कमेंट करेंगे या कहीं पे भी हम उसके ऊपर बार बार रोके टोकेंगे उसको, तो फिर वो खुशी जो उसको महसूस करनी चाहिए वो नहीं महसूस कर पाएगी, जो कि उसके आने वाले शिशु को हो सकता है कहीं ना कहीं इफेक्ट करे. और ये जब हम लोग गर्भ संस्कार की बात करते हैं तो इट इज प्रूवन फैक्ट कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो है मदर की, वो साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन इट अफेक्ट्स द health of the child. So it is very important. The role of family. The environment तो इफेक्ट करता है. अब खाने की जो भी माँ खा रही है, जो सुन रही है, हमने the researchers, especially the research from the current journal have said कि the baby can also cry in the womb as early as 21 weeks of pregnancy, and it is the response of the baby to the external stimuli. अगर वो loud noises सुन रही है या shouting सुन रही है तो माँ तो sad हो रही है, but बच्चा also gets sad. The flow decreases with the baby. Sorry, and eventually the mother can develop into gestational diabetes or hypertension. So these stimuli actually affect the mother and the baby very badly. जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा. And how does ma'am these coping mechanism can help the mother bear a happy child? Because
हमारे पास मदर आती हैं जिनके ट्रॉमेटिक पीरियड रहा है एंटीनेटल एंड द बेबीज बिकम sick. I've seen babies going to NICUs and getting sick. So you think कि mental अपने गर्भ संस्कार की बात की, does it affect the baby's mental health as well? How does it affect it? Like अगर माँ अच्छा सुन रही है, अच्छा देख रही है, तो वो बच्चे को कैसा अफेक्ट कर रहा है उसकी मेंटल हेल्थ को? वो अगर माँ, इसीलिए कहते हैं कि उसके संस्कार जो है उसके बूंब में ही पड़ जाते हैं। तो अगर माँ मेंटली हेल्दी नहीं है तो द बेबी कैन नॉट बी मेंटली हेल्दी। वो द चाइल्ड इज अंडरगोइंग ऑल द ट्रॉमा विच द मदर इज अंडरगोइंग। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि माँ को मेंटली हेल्दी रहना ही रहना है और खुश रहना है। इसीलिए शायद देखिए हमारे पहले के जो लोग थे वो हमें ये भी कहते थे कि आप जो है अच्छे स्क्रिप्चर्स पढ़ो, अच्छा म्यूजिक। तो हमारे जब स्टेज घाट में मत जाओ, हॉस्पिटल्स मत जाइए ना, नेगेटिव जगह पे। तो गर्भ संस्कार के भी कई हमारे स्टेजेस हैं, तो उनमें ये बताता है कि अच्छा भोजन बहुत इम्पोर्टेंट है। देन सेकेंडली स्पिरिचुअलिटी की तरफ अच्छी चीज़ों को पढ़ना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना। एंड देन यू नीड टू बी हैप्पी, दैट मीन्स आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें। तो इट ऑल्सो हैज सर्टन स्टेजेस, इट टॉक्स अबाउट ऑल दीज स्टेजेस। तो ये तीन उसके मेन बिंदु हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑल हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन, ऐसा नहीं है कि ये किसी मिथ पे बेस्ड है, इट इज ऑल साइंटिफिक। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है माँ की मेंटल हेल्थ का। Correct. And ma'am, let's talk about sexuality in pregnancy because again it is a very big issue. जैसे जैसे माँ के अंदर फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, बेली बढ़ती है, वो इनसिक्योर होने लगती है बिकॉज जिस तरह का एक इंटीमेसी उसके पार्टनर जो शेयर कर रहे होते हैं, अब वो उस तरह से शेयर नहीं कर पाते हैं। एंड कुछ प्रेगनेंसीज हाई रिस्क होती हैं जिसमें हम मना कर देते हैं फॉर 9 months दैट यू शुड नॉट मेक कॉन्टैक्ट विद योर हस्बैंड्स। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डज द सेक्सुअलिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं अफेक्ट्स द मदर एंड द रिस्पॉन्स जो उसको पार्टनर से मिल रहा है इन रिटर्न ऑफ इट? डू यू थिंक कि दिस ऑल्सो अफेक्ट्स, कहीं ना कहीं रीजन है फॉर द एंजाइटी ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी इशू, क्योंकि द मदर बिकम्स वेरी इनसिक्योर। उसके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी आ जाती है क्योंकि वो लेवल ऑफ इंटीमेसी, कई बार कुछ ऐसे क्रिटिकल इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से वो मेंटेन नहीं कर पाती है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद भी कॉशियस रहता है और वो लेवल ऑफ इंटीमेसी मेंटेन नहीं कर पाता है। तो स्पेशली द फीमेल इट अंडरगोज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी। उसको कई बार ये भी लगने लगता है कि हमारे पार्टनर्स डिविएट ना कर जाएं, किसी और में इंटरेस्टेड ना हो जाएं बिकॉज आई एम नॉट एबल टू बी प्रोवाइड दैट लेवल ऑफ इंटीमेसी। तो ये सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं और इसके लिए मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है वेरी ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द पार्टनर्स कि एंड दिस ओपन कम्युनिकेशन शेयर ऑल योर एंजाइटीज। जो भी आप महसूस कर रहे हो, जो भी आपकी एंजाइटी है, वो आप अपने पार्टनर से खुल के शेयर करिए। जब आप शेयर करते हैं तो उस द पार्टनर टेंड्स टू बिकम मोर एम्पैथेटिक। वो महसूस कर पाता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हो। आप जब तक शेयर नहीं करोगे तो जनरली ऐसा होता है कि मेल्स को पता नहीं है कि आप किस अंदर आपके क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर बिकॉज वी हैव नॉट बीन educated about it. And there is lack of awareness and education regarding this. So they need to be told. When you share it with your partner, then he is also more sensitive. And आपकी insecurities को अगर वो जरूर एड्रेस करेंगे। एंड आई थिंक मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ मैम, आई थिंक ये चीज़ छोटे से स्टार्ट करनी चाहिए। व्हेन दीज पार्टनर्स आर बॉयज, it's a duty of the mothers also to tell them to be empathic towards their girl colleagues in their class, especially जब उनके अंदर वो physical changes आ रहे होते हैं, जब they are getting their first period, because there are incidences in the class where the girl bleeds and the लड़के होते हैं चढ़ा रहे होते हैं। Even that affects, and we are being brought up in a society where boys are just not told anything about periods or delivery or pregnancy. तो उनको कुछ भी आइडिया नहीं रहता है इस सब चीजों के बारे में। You're absolutely right. इसीलिए हम लोग जो कहते हैं कि सोशलाइजेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम द डे वी आर बोर्न टिल द डे वी डाई, राइट? तो थ्रू आउट वी आर लर्निंग। तो बचपन में जो हम सीखते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमारे लेटर लाइफ, अगर हम फ्रॉइडियन थ्योरी को लेके चले तो दैट इज एब्सोल्युटली वो कि आपके जो बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके आगे की लाइफ को डिटरमाइन करेंगे। दैट इज वन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी विच टॉक्स अबाउट इट। बट येस, हमारा सोशलाइजेशन, जो हैबिट्स, जो सेंसिटाइजेशन हम बचपन में डेवलप कर लेते हैं वो हमारे आने वाली जनरेशन्स को बहुत इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर एक माँ एक अपने बेटे को ये इतनी जेंडर सेंसिटिविटी उसके अंदर ला देती है
तो दैट इज वेयर ऑल जेंडर बाइसेस एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैन बी रिमूव्ड, राइट. सो मदर्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एंड आई थिंक कि अगर मदर्स रियलाइज करेंगी और कॉन्शियस रेयरिंग करेंगी, पेरेंटिंग, यहाँ पे हम पेरेंटिंग पे पूरा एक हमारा अलग ही बात हो सकती है, तो पेरेंटिंग, लेकिन इट नीड्स टू बी मोर कॉन्शियस सो दैट वी, हमें ये लगे कि हम अपने बच्चों में कोई भी ऐसे बाइसेस, स्टीरियोटाइप्स पास ऑन नहीं कर रहे हैं which is not healthy for their co-living of the males and females. So ma'am, let's just talk about 5 key points. आप क्या बताएंगी हमारी pregnant ladies को या उनके partners को कि ये signs अगर उन्हें दिख रहे हैं pregnancy में, then they should immediately go and consult a psychologist or the doctor. एक तो अगर लग रहा है कि बहुत persistent समय तक उलझन या एंजाइटी है, Okay. और दैट इज फॉर अ लॉन्ग टाइम. By long term you mean Maybe- trimester हो गया, Yeah. second भी चल रहे हैं. Okay. तो persistent है अगर, then that is a cause of Correct. ठीक है. देन सेकेंडली कंसर्न है, सेकेंडली ये भी देखने की जरूरत है कि कहीं पे द पर्सन सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं दुखी रह रहा है, द पर्सन इज सैड, एंजाइटी तो है ही है, संग में वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए. She cries more often. She cries more often. बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, बात बात पे बहुत ज्यादा, विच इज समथिंग कि Not normal. हाँ, नॉट नॉर्मल, एंड दैट इज परसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन हो रही है, Then they should then that consult is a cause of concern. Right. So we need to अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, and then because it may slowly then slip on to depression. So these symptoms may slowly the person may be And what kind of signs do we have to notice? अगर एक पार्टनर को क्या पता होना चाहिए कि हाँ मेरी वाइफ को डिप्रेशन अब हो रहा है, तो क्या क्या उसको साइंस पता होने चाहिए, लाइक कैसे वो आइडेंटिफाई करे? स्लीपलेस नाइट्स होंगी, ठीक है. एंड देन उसके स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत ही इराटिक होंगे. थर्डली वो तो थोड़ा प्रेगनेंसी की होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी हमें देखना है. एंड देन कि अगर फिजियोलॉजिकली डॉक्टर इज सेइंग कि सब सही चल रहा है, फिर भी दीज थिंग्स आर अकरिंग, देन दे आर अ कॉज ऑफ कंसर्न. फिर ईटिंग पैटर्न देखना पड़ेगा. डिप्रेशन में ईटिंग पैटर्न्स आल्सो दे आर मैटर अ लॉट. सो और फिर उसके बाद द पर्सन इज वांटिंग टू कीप वनसेल्फ आइसोलेटेड. वही मैंने कहा, अगर वो दुखी है और आइसोलेटेड, किसी से इंटरैक्ट नहीं करना चाह रहा, वो कनेक्ट विद द बेबी इनसाइड नहीं फॉर्म कर पा रहा है. बिकॉज यूजुअली द मदर्स आर वेरी हैप्पी व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, बिकॉज दे फील इट कि यस somebody is inside and I am going to give a birth to a new life. तो अगर वो कनेक्ट नहीं फील हो रहा है, वो पार्टनर्स में भी बॉन्डिंग भी मिसिंग है, जिसकी वजह से इंटीमेट लेवल भी उस तरह से मेंटेन नहीं हो पा रहा, देन थोड़ा सा हमें वी शुड बी, द बेल शुड रिंग एंड वी शुड थिंक कि नहीं, कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ा सा जो है इसको कंसल्ट करने की जरूरत है. एंड वन मोर स्टिग्मा दैट पीपल हैव कि प्रेगनेंसी में हम कैसे नहीं जाना चाहिए थेरेपिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, अरे वो तो ऐसी दवाई चला देंगे, बच्चे को नुकसान हो जाएगा, या यू नो दीज आर द स्टिग्मास दैट वी हैव इन आवर सोसाइटी. मेंटल हेल्थ को लेके तो बहुत ज्यादा है, और प्रेगनेंसी में तो और भी कई तरह के हमारे पास, क्योंकि सोशल इन्फ्लुएंसेस होते हैं ऑफ योर मदर इन लॉ, ऑफ द सोसाइटी, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई थिंक ये स्टिग्मा को हमें वी हैव टू सरपास देम एंड वी नीड टू विजिट द साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट फॉर दैट मैटर इफ यू थिंक दीज साइंस आर प्रेजेंट. लाइक ओके, सो ये तो हमने एक लेडी की बात कर ली, बट वी ऑल्सो हैव अ पार्टनर विद दैट लेडी जो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है कि उसकी एक वाइफ है जो चिड़चिड़ा भी रही है, गुस्सा कर रही है, उसको कुछ नहीं पता उसके साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं. And it is not talked much about male mental health, but when the lady gets pregnant and they both of them are alone in a city, as I've told about the neutral families, वो दोनों अलग हैं, तो एक आदमी भी बहुत हेल्पलेस फील करता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी वाइफ खुश रहे. या तो मुझे लगता है ये एक मेल के मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा टोल होता है एक फीमेल की प्रेगनेंसी. आई थिंक बोथ आर प्रेग्नेंट, हम कहते हैं ना, इवन वी आर प्रेग्नेंट, लाइक दैट्स अ टर्म नाउ डेज यूज, वी आर प्रेग्नेंट. तो हम मेल हेल्थ के लिए एक मेल को क्या क्या साइंस पता होने चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए जब उसको लगे कि उसको दिक्कत हो रही है कुछ काम करने में. व्हेन शुड ही गो एंड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट? देखिए, शेयरिंग इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम जब बात करते हैं तो हमारी आधी दिक्कत तो वैसे ही खत्म हो जाती है.
और जब इस फेज से गुजरते हैं तो एक हो सकता है कि कई बार दिस इज समथिंग विच आई फील कि हम नहीं ले पा रहे हैं आगे, एंड इट इज नाउ अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ, एंड देन कम्स अ टाइम व्हेन यू स्टार्ट इंटरैक्टिंग, स्टॉप इंटरैक्टिंग विद द वाइफ, या फिर आप थोड़ा अलग रहना चाहते हैं, आप ज्यादा टाइम बाहर बिताना चाहते हैं कि घर जाएंगे तो फिर वही सब माहौल रहेगा. These are the pointers. These are the pointers. Yeah. So now you should need to think, no, this is not the correct solution of avoiding things. No, this is the time when I need to share it with somebody, maybe take a help of a counselor or a psychiatrist. No, not at the early level, we don't need a psychiatrist. We can just consult a counselor or a therapist. वो हमें थोड़ा सा guide करेगा about, because we are also not aware, and the wife may also not be aware so much about the changes that are taking place. तो वो हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे, थोड़ा सा हेल्प करेंगे, हमारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को में और मदद करेंगे कि हम किस तरह से खुश रहते हुए संग में इस नैया को पार लगा सके. And do you think reading books also help in this period? Yes. Any Can book that you would like to recommend? Any 5 books that you would like to recommend both the partners to read? There are a number of motivational books. Mindfulness पे बहुत है. Yeah. Mindfulness is something which lets you live in the moment. Yeah. तो mindfulness पे हमारी बुद्धिस्ट साइकोलॉजिस्ट पूरी है, उस पे नंबर ऑफ बुक्स आर देयर ऑन माइंडफुलनेस. सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप जरूर माइंडफुलनेस पे, हाँ, माइंडफुलनेस पे आप कोई ना कोई किताब उठा के जरूर टू रीड. हाँ, देन देयर आर नंबर ऑफ मोटिवेशनल अदर राइटर्स ऑल्सो हु हैव रिटन अबाउट दिस, विच यू कैन पिक अप एनी बुक. प्रेगनेंसी पे भी बहुत सारे आपके डॉक्टर्स ने बुक लिखी हैं About the diet, about the changes. हाँ, अबाउट द न्यूट्रिशन दैट दे रिक्वायर. गर्भ संस्कार की भी मेरी भी 2 किताबें हैं जो हम लोग ने गर्भ संस्कार पे निकाली हैं. तो देयर आर नंबर ऑफ बुक्स. मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको पढ़ने से आपकी अवेयरनेस लेवल भी बढ़ेगी. So they have nobody to guide them हाँ. at this time. और अवेयरनेस लेवल भी बढ़ेगी, एंड विल बी बेटर एबल टू कोप एंड टेक अप दिस न्यू चैलेंज ऑफ लाइफ इन अ मोर हैप्पी एंड ब्लिसफुल मैनर. Yes. So let us sum up. तो आपने बोला एक mental health पे यानी mindfulness पे book read करना जरूरी है. About the nutrition, about the changes in the pregnancy. Yes. And then about the Buddhist psychology also you said कि that will help them to navigate through this period, right? Yeah. And about the changes, the mental changes also that the partner is undergoing, right? Nice. So मैं अब तक तो प्रेग्नेंट थे, अब बच्चा हो गया क्योंकि एक नया प्राणी आ तो गया, बट किसी को नहीं पता उससे डील कैसे करें, है ना? बिकॉज अभी तक तो खुद ही जूझ रहे थे मेंटल हेल्थ में. अब द बेबी हैज कम. नाउ वन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट आई फेस इन माय ओपीडीज आल्सो, मैम मुझे फीलिंग नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही, बच्चा तो आ गया बट आई डोंट फील लाइक बॉन्डिंग. कब आएगी वो फीलिंग, जो फीलिंग नहीं आ रही? सो कैन यू क्वेश्चन दैट फॉर देम? Generally, आप भी you're a doctor, तो you also know that we term it as postpartum depression. Postpartum depression is also a very normal thing, जो कि कहीं ना कहीं लेकिन हम केवल बेबी ब्लूज कह के उसको अवॉइड कर सकते हैं, है ना? नहीं तो हमें वो अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द टाइम एट सर्टेन पॉइंट्स ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ बेबी ब्लूज नहीं है, या इट इज नॉट ओनली पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इट इज समथिंग विच मे लीड टू अदर मैनिफेस्टेशंस इन हेल्थ और मेंटल हेल्थ. सो वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट इट. अगेन द कंसिस्टेंसी मैटर्स, कि अगर कंसिस्टेंटली ऐसा हो रहा है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड हो रहा है, एंड द मदर इज नॉट एबल टू कनेक्ट विद द चाइल्ड एट ऑल, द मदर इज ऑल द टाइम एंग्शियस, उसको वो जो मातृत्व का जो एक एहसास है और एक जो प्यार है वो नहीं आ रहा है. मैंने अभी देखा एक केस जिसमें एक मदर थी जो बिल्कुल भी अपने बच्चे को गोद तक लेने में तैयार नहीं. अटैचमेंट, हाँ, नहीं, बिल्कुल वो बच्चा रो रहा है और वो उसको देख रही है पर उसको उठा नहीं रही है. तो अगर ऐसी चीजें आप देख रहे हैं, सो दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल. यस, राइट, दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल, क्योंकि वो अटैचमेंट, वो बॉन्ड तो आपका रहेगा ही. नो वंडर यू आर अंडरगोइंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन, दैट इज अ फेज. बट again, these are the symptoms which are alarming, and you need to again consult some therapist. Yes. First of all, talk to your doctor. Then you go to a therapist if the doctor advises. So I mean postpartum, because of the sudden crash of the hormones like estrogen and progesterone, mood swings आते हैं, है ना? But there are incidences where the mother also faces problem to the point that she gets suicidal tendencies also. And there are cases where we have studied and read in papers that the mother would, also has this this feeling of killing the child also. Like there have been some there have been some cases like that. तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? इतना aggravate क्यों हम होने दें चीज़ों को? What are the early signs? इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि मदर तो नहीं उतना जूझ रही होती है उस टाइम पे, वो तो she is not even aware
आई थिंक पार्टनर और उसके फैमिली की जिम्मेदारी है नोटिस करना इन चेंजेस को एंड राइट टाइम पे उस मदर को कंसल्ट कराना एक एडिक्वेट डॉक्टर से. तो व्हाट आर दोस पॉइंटर्स, जैसे अभी आपने कहा कि हाँ वो लो फील कर रही है एंड द मदर इज फीलिंग लो, अटैचमेंट नहीं, वो आपको बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रही है. द इवन द मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द पार्टनर ऑल्सो. ओके, है ना, शी इज नॉट हैप्पली क्या, शी इज नॉट वांटिंग टू इंटरैक्ट विद द पार्टनर ऑल्सो. वो फैमिलीज को भी थोड़ा दूर ही दूर रख रही है, नॉट वांटिंग टू इंटरैक्ट विद देम ऑल्सो. हाँ, सो दीज आर द सिम्टम्स, दीज आर द साइंस इन विच दे शुड फील कि नहीं अब इसको थोड़ा सा अभी जरूरत है, एंड शी needs more support and support from outside also. हमारे support के अलावा इसको थोड़ा सा और कई बार support, medication as well as your therapist, all these things need to go together in order to bring the person out of it. बिकॉज मैम पोस्ट पार्टम में इतनी सारी कहानियां जुड़ी हैं ना इस चीज से, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई बता रहा होता है ये मत खाओ, ये मत पियो, तुमने आज नहा लिया, देखो बच्चे को नंबर ऑफ एडवाइसेस, नंबर ऑफ पीपल. तो एक तो वैसे शी इज अंडरगोइंग लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड सो मच ऑफ एडवाइस इज कमिंग फ्रॉम द पीपल हु आर नॉट इवन रिलेटेड. कोई भी आंटी जी आ जा रही है आपको बता रही हैं कि आप बेटा गुड़ खाओ तो दूध अच्छा आएगा, आप ये खाओ, आप वो खाओ, एंड उसको शायद पसंद भी नहीं है वो खाना, बट देन शी हैज टू ईट दैट. देन देयर इज लॉट ऑफ मिथ अबाउट द डाइट कि कुछ लोगों को बिल्कुल सादा खाना, एकदम पतला खिचड़ी खिलाते हैं एंड देन कुछ दिन बाद आफ्टर अ मंथ दे आर अलाउड टू ईट. जबकि if I talk about science, तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें. she has to eat homemade food rich in nutrition. ऐसा नहीं कि खिचड़ी ही सिर्फ खिलानी है या दलिया भी सिर्फ खिलानी है. सो इस तरह के जो एडवाइसेस होते हैं वो किस तरह से माँ को हार्म करते हैं, कितना डिटोरिएट कर सकते हैं माँ की हेल्थ को? कई बार बहुत ज्यादा भी कर जाते हैं, तो हमें बस कॉशियस ये रहना है कि हमें अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना है. क्योंकि हमारा हर एक डॉक्टर जिस पे हम कंसल्ट करते हैं वो हमें एक प्रॉपर डाइट और हमें कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, आयरन की मेडिसिन लेनी है, कि हमें उस समय जो है वॉट एवर इज नीडेड फॉर अस वो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं. तो हमें उनकी एडवाइस को सर्वोपरि प्रायोरिटाइज करके और उसको लेके चलना चाहिए, एंड वी शुड गो बाय दैट. यस, और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके अपनी एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमें कुछ अच्छी एडवाइसेस देते हैं, तो वो भी हमें फॉलो करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल उनको निग्लेक्ट कर दें कि आप ये कह रहे हैं मैं नहीं मानूंगी, मुझे तो अपना डॉक्टर. नो, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड दे नो अ लॉट मोर देन वी नो. तो उनकी एडवाइस को भी करना चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंटली केवल एक चीज पे फोकस करके एक ही चीज को आप अगर कई महीनों तक खाओगे तो आई डोंट थिंक सो यू आर गेटिंग अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन. बैलेंस्ड भी नहीं है. व्हेन शी इज ब्रेस्ट फीडिंग देयर इज आल्सो बीन अ पेथ वेयर द mother-in-law said not to drink water because आपका दूध पतला हो जाएगा. मैंने कहा breastfeeding hydration is very important. Very important. And the patient came to me और उसकी mother-in-law भी आई थी. मुझे तो पहले बहुत गुस्सा आई, फिर मैंने कहा भाई what is this attitude, मतलब ये. And then again एक चीज और होती है, to keeping the women in warm room. अक्सर वो धुआं वगैरह भी कर देते हैं, एंड गर्मी, जून की गर्मी में उसको गर्म में रखा है, एंड व्हेन आई ओपन द स्टिच लाइन पूरी सब पास हो रखा है और बिल्कुल हीलिंग नहीं हो रखी है. सो इतने सारे मिथ होते हैं कि वो मेंटली तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, फिजिकली भी शी इज अंडरगोइंग लॉट ऑफ चेंजेस. यूट्रस वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है, इन्वोल्यूट कर रहा है, उसको वो पेन भी हो रहे हैं, पेल्विक फ्लोर एकदम वीक हो चुकी है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसेस की प्रॉब्लम है, आपके फीकल इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, देन मेंटल इश्यूज इतने ज्यादा हैं. मदर पूरा she's like undergoing struggling with everything. She's like juggling with, and then there's a big issues. Yeah, and then there's a baby to look after, which is totally dependent on the mother at that time. Yeah, and do you think somewhere the mother also gets a feeling that she's not good enough for the baby, because उसको हमेशा कुछ ना कुछ एडवाइस मिलते हैं कि आपने ऐसे ऐसे कर लिया तभी ऐसा हो गया, बच्चा बीमार हो गया, आपने ये खा लिया तो देखो उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपने ऐसा कर लिया तो बच्चे को डायरिया हो गया. तो ये जो फीलिंग आती है ना कि नहीं आई एम नॉट गुड इनफ, आई थिंक यही है जो एग्रेवेट करती है बाद में टू व्हाट यू सेड एज डिप्रेशन. या वेरी ट्रू. यही फीलिंग को हमें आने से रोकना है. और हमें चेकअप ऑन करना है कि हम मदर को कहीं पे भी स्लिप ना करने दे उस स्टेज में, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर द फैमिली, नॉट फॉर द मदर, नॉट फॉर द चाइल्ड कि वो ऐसी स्टेज में स्लिप करे. सो मैम लेट्स टॉक अबाउट प्रेगनेंसी लॉस, है ना. तो कुछ लॉसेस होते हैं जिसको इंट्रा यूट्राइन हो जाते हैं, मतलब मदर 7 month 8 month प्रेग्नेंट होती है तब लूज कर देती है बेबी. इतनी बड़ी जर्नी उसने कर ली और एंड में रिजल्ट उसको नहीं मिला, उसके बाद she suffers from a lot of trauma. What do you want to say about it? Like उसको कैसे, how should we deal with it? How should the family deal with it? How should the partner deal with it? ये दोनों के लिए बहुत म्यूचुअल पेन की बात होती है.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में, क्योंकि दोनों ही दे आर बोथ ऑफ देम आर अंडरगोइंग द सेम लॉस, द सेम पेन. इट इज इक्वली पेनफुल फॉर बोथ. सो ओपन कम्युनिकेशन अगेन देन मैटर्स अ लॉट. सेकेंडली ये भी बहुत ज़रूरी है कि PTSD में ना कन्वर्ट होने पाए. ये जो ट्रोमेटिक कंडीशन है, ये पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ना बने. तो इसके लिए यू नीड टू बी कॉशियस इनफ कि थोड़ा आपके बारे में कुछ थोड़ा सा आपको अपना डाइवर्ट करना पड़ेगा माइंड को. एंड देन दे नीड टू थिंक अबाउट कि अब क्या हमारे कंट्रोल में है. व्हाट हैज हैपेंड इज ऑलरेडी हैपेंड. That thing is not under our control. So now what is under my control? कि जो अब present scenario में मेरे control में क्या है and how can I work for a better future? तो इस पे अगर हम अपना both the partners sharing with each other, bonding with each other, helping each other out, तभी I think both can come out of this phase. yes, because the loss is of the entire family. Yes. And then the family support also. इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कि आपने ये कर लिया होगा, इस वजह से हो गया. कई बार फीमेल्स को ये ब्लेम कर दिया जाता है कि इनकी लापरवाही से हो गया, इन्होंने ऐसा किया, इस वजह से हो गया. इवन द पार्टनर स्टार्ट्स ब्लेमिंग द फीमेल्स, अपने पार्टनर को कि आप इसकी वजह से हुआ. सो दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड हैज हैपेंड. तो नाउ यू हैव टू पुल द पर्सन आउट, यू हैव टू पुल बोथ ऑफ देम आउट. तो इसमें फैमिली का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एज वेल एज ऑफ इक्वल रोल ऑफ ईच टुवर्ड्स ईच अदर. बहुत ज्यादा कॉमन तो खाने से रिलेटेड हो जाता है. इतने गरम खा लिया होगा इसलिए बच्चा खराब हो गया, या इसने बाहर का वो खा लिया था, या फिर कुछ ऐसे फल भी बताए जाते हैं कि ये फल नहीं खाने आपको, अगर आपने प्रेगनेंसी में ये खा लिया तो फिर द चाइल्ड भी इसीलिए अबॉर्ट हो गया, या इसने भारी वजन उठा लिया उस दिन. ये कुछ एक कॉमन मिथ्स तो चले आ रहे हैं हम. जी. So, do you think therapy plays a very important role? What is the alarming signs क्या हो सकते हैं इसमें, जिसमें उसको चाहिए कि हाँ, आप जो तुरंत जाना चाहिए डॉक्टर के पास? थेरेपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सबसे पहले तो आपको ये भी देखना है कि जब मैंने पहले भी कहा कि कैथारसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब आपको थेरेपी का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, तो हम उनसे शेयर, कई बार ऐसा होता है कि सर्टेन इनहिबिशंस की वजह से हम शेयर नहीं कर पाते. वी आर नॉट एबल टू शेयर विद देम, वी आर नॉट कंफर्टेबल. हमें कई बार सारे इवन अपने लाइफ पार्टनर से भी हम चीजें शेयर नहीं कर पाते. तो अगर हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि हमें अंदर अंदर घुटन हो रही है और हमें कुछ कहना है, नहीं तो कई बार ऐसी फीलिंग होती है कि मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं इससे सह नहीं सकता. तो either of them are feeling that ways कि yes I need to just it needs an expression. और वो एक्सप्रेशन में अपने फैमिली मेंबर्स के सामने, अपने लाइफ पार्टनर के सामने नहीं कर पा रहा. कई बार हम इसलिए भी नहीं कर पाते कि हमें लगता है कि अगर हम रोएंगे तो द सेकंड पर्सन की मेंटल हेल्थ फिर अफेक्टेड होगी. आई विल पुल द पर्सन आल्सो इनटू डिप्रेशन. तो कई बार फीमेल्स इसलिए भी नहीं करती, कई बार मेल्स भी नहीं करते. सेकेंडली मेल्स का सोशलाइजेशन प्रोसेस ये भी रहा है हमारे यहाँ कि लड़के रोते नहीं है. हाँ, है ना. So you don't have to open up with your emotions in front of others. It's more difficult for the males, I think, mental health. तो वो और उसको पाइल अप कर लेते हैं. तो इस समय मुझे सोचना चाहिए कि if I am not able to share with the people as surrounded by me, then I need a third person. Yes. So then comes the role of a counselor and a therapist. आप जाएंगे and हमारी काउंसलिंग एंड थेरेपी की ये सबसे पहली शर्त है कि जो भी आप हमसे कहेंगे that is 100% confidential. Yes. So if it 100% confidential, तो आप उस डर को निकाल के जाइए. आप अपनी बात खुले दिल से शेयर करिए. शेयर करने से, कैथारसिस होने से आप देखेंगे कि आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी. मैम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रीफ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते. जैसे अभी हम बात कर रहे थे ग्रीफ की स्टेजेस के बारे में, कुछ उसके बारे में भी थोड़ा बताइए. जी. जब ऐसा कोई भी लॉस होता है and the person undergoes trauma, तो the person slips into grief. Or grieving is very important, and there is no right way of navigating through grief. Everybody has their individual differences, but yes, there are certain stages of grief. कि पहले person is in denial, फिर गुस्सा आता है हमें, the person is in a stage of anger. फिर पर्सन जो है थोड़ा थोड़ा नेगोशिएशन के मोड में आता है, ऐसे नहीं ऐसे हुआ होगा तो इसलिए की वजह से हुआ. देन द पर्सन स्लिप्स इनटू डिप्रेशन, जब वो नेगोशिएशन से थक जाता है, एंड देन द पर्सन कम्स टू द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस. तो उसकी एक अपनी पर्टिकुलर फेजेस है, स्टेजेस है, जिससे हर पर्सन गुजरता है. और उसमें बहुत जद्दोजहद करने से कि नहीं तुम मत रो और उसको चुप करा देने से, so that may be harmful at times and it may not let the catharsis happen. तो let the person grieve, वो अपने नॉर्मल पीरियड से ले आता है, लेकिन
सपोर्ट सिस्टम की बहुत जरूरी है. You need to be around the person. ये नहीं है कि अब आपने छोड़ दिया कि ये तो ग्रीव के स्टेज से क्रॉस करेगा तभी ये बाहर आएगा. No, you have to be there. The family has to be there. The partner has to be there. Even if you need a therapist, वो भी रहना चाहिए. Then, but yes, it slowly the person will come out of it. But ma'am, there are some families and especially औरतों में ये बहुत इनिबिशन होता है. जैसे आपने कहा थेरेपिस्ट के पास आप जा सकते हो, थर्ड पर्सन के पास, बट ये घर में बताना कि मैं थेरेपिस्ट के पास जा रही ये हूँ, स्टिग्मा है. ये बहुत बड़ा स्टिग्मा, लोग जाने ही नहीं देते, है ना. तो क्या आपको लगता है कि जर्नलिंग का रोल है इस ऐसे सिनेरियोज में? क्या कर सकती है वो लेडीज? वो पति को नहीं बता सकती, अपनी सास को नहीं बता सकती, थेरेपिस्ट के पास भी नहीं जा सकती कि घर में इतना बड़ा स्टिग्मा है, तो खुद से वो क्या कर सकती है? कैन शी डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज या कुछ मेडिटेशन कर सकती है या जर्नलिंग कर सकती है? बिल्कुल. टू कम आउट ऑफ इट, जैसे मैंने कहा कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, दैट इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज. आप माइंडफुलनेस सीख सकते हैं थ्रू यूट्यूब. ऑल्सो यू कैन लर्न माइंडफुल ब्रीदिंग करिए. That helps you a lot. It's a kind of a breathing. Yes, that's a breathing exercise which you do very much. Mindfulness basically means living in the present moment. So you have to focus on your breathing. उसके कुछ स्टेप्स हैं और आप माइंडफुल ब्रीदिंग करिए. एक्सरसाइज अगेन हेल्प्स, क्योंकि वो जब when we exercise तो हैप्पी हार्मोन्स हमारे सिक्रीट होते हैं. तो दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस व्हिच हैपेंस व्हेन वी एक्सरसाइज. तो उससे भी आपके जो मूड लो है तो वो कुछ ना कुछ अप जरूर आएगा. थर्ड, जर्नलिंग को जो आपने मेंशन किया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस कि आप जर्नल में लिखते हैं तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ कैथारसिस कि आप एक्सप्रेशन, यू आर फाइंडिंग हाउ टू एक्सप्रेस योर इनर ट्रॉमा. तो आप उसे जब लिख डालते हैं तो भी आप बहुत रिलीफ फील करते हैं. कई बार हम क्या करते हैं, कागजों में लिख के, इफ आई एम फीलिंग गिल्टी या फिर हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं, मे बी स्पेशली ऑफ द डेथ, तो आई जस्ट सिंपली राइट अबाउट इट एंड मैंने उसको एंड फॉरगिवनेस, you just write about that, I forgive that person, and you just throw it in the dustbin. So you feel कि yes, I have, now this chapter is over. So there are a number of other psychological exercises also जो कि आप which you can take help of. We can read about it. आप YouTube पे भी बहुत सारी चीजें available है, आप उनकी भी help लेके, if you're not able to consult a therapist, then also you can help, self कर सकते हैं. So ma'am, let's talk about the new generation. अब जो हमारी generation है, they have become more vocal about their mental health. उनको पता है anxiety क्या होती है, depression क्या होता है, and some of them have become aware of it and have identified it themselves कि they are facing these problems. और अभी हम सब जानते हैं महाकुंभ का समय है और हमने IIT बाबा के बारे में बहुत सुना है. उनके इंटरव्यू में ये आया था कि he had a very bad and rough childhood और उनका बहुत ही ट्रॉमास हुए थे during his childhood which had led him to quit the world even though he was a good professional. He had done his IIT, worked, but then ultimately he had to quit the world and adopt the way of the spirituality. He'd become a sadhu. So what do you think कि इस तरह की जो अब जनरेशन है जो अभी प्रेग्नेंट भी होंगी, they'll get go into marriages, प्रेगनेंसी होगी, चाइल्ड बर्थ होगा, तो किस तरह से they should navigate their life journey? देखिए, द इकोसिस्टम हैज चेंज्ड अ लॉट. जो हमारी जेन एक्स क्या था इकोसिस्टम और अभी का जो है, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज. एक तो पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था. नाउ वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम. देन अर्लियर द मदर वाज नॉट वर्किंग. अभी के सिनेरियो में मोस्ट ऑफ द मदर्स आर वर्किंग. सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी जो जेनजी है और हमारा ये जनरेशन है, इनमें there are many emotional you can say changes, emotional इनके कुछ traumas भी हैं which have been left unaddressed. Right. I'm just like to interrupt you here. Don't you think कि joint family में भी traumas थे या उनके अलग trauma थे but कभी बोला नहीं गया उनके बारे में vocal, है ना? अब जब क्योंकि इतना बोला जा रहा है, then they have come up. जैसे पहले भी थे, like we have seen our mothers and grandmothers facing the same thing, but somehow because they know कि हमें कहीं से help नहीं मिलने वाली है, वो self help या अपनी friend से discuss करके या देवरानी जेठानी से discuss करके उस bond से they used to come out of that. लेकिन अब because हमारे पास वो नहीं है system, तो बात I think तब भी वही traumas थे, like you said कि ecosystem बदल रहा है, but how are these traumas changing? Both joint and nuclear family have their own positive and negatives, right? लेकिन ये था कि एक
थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम और अवेलेबल था बच्चों को तो इंटरैक्ट, उनका जो सोशलाइजेशन प्रोसेस था इट वाज थ्रू नंबर ऑफ एजेंट्स, राइट. अभी क्या है, ओनली दे हैव टू लुक अपॉन मदर एंड फादर, एंड सेकेंडली अब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे आर वांटिंग टू हैव ओनली वन चाइल्ड. तो नॉट इवन सिबलिंग्स आर देयर, सिबलिंग्स भी नहीं है कि दे कैन हैव. तो जो पीयर इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा हो गया है. पीयर इन्फ्लुएंस होने की वजह से दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज एंड डिफरेंट कल्चर्स, ये भी हो सकता है. तो उनकी एक अलग नॉर्म्स होती हैं. तो हमारी जो रेयरिंग प्रोसेस थी, हो सकता है हम अपने बच्चे में कुछ वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, लेकिन द पेयर इन्फ्लुएंस इज मोर कि वो नहीं प्रायोरिटाइज हो पा रही. तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर वर्किंग. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आई थिंक कि बिफोर गेटिंग इनटू द इवन इनटू द स्पेस ऑफ मैरिज, बिकॉज हम ये देखें कि मैरिज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ इंडियन सोसाइटी. हमारी सोसाइटी का एक बहुत मजबूत स्तंभ हुआ करता था, दैट इज इंडियन सोसाइटी का, राइट. तो लेकिन वो स्तंभ हमें कहीं डगमगाता हुआ था, राइट, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैरिज को शायद उतनी मजबूती से पकड़ कर रखने में नहीं रख पा रहे हैं लोग, घातक हो रही हैं उसके लिए. तो आई थिंक कि बिफोर इवन जंपिंग इनटू दिस स्पेस ऑफ मैरिज, प्री मैरिटल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्री मैरिटल, जब हम गर्भ संस्कार की भी मैं बात जब करती हूँ, तो दैट टॉक्स अबाउट प्री ऑल्सो प्रेगनेंसी फेज ऑल्सो, जिसमें पूरी यस प्री कंसेप्शनल फेज ऑल्सो, जिसमें पूरा जो है उनकी काउंसलिंग होती है कि किस तरह से नाउ यू आर गोइंग टू अ नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ. तो इसी तरह व्हेन इनटू गेटिंग इनटू दिस मैरिज थिंग, दे नीड अ प्री मैरिटल काउंसलिंग. देन व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग पेरेंट्स, बिकॉज बिकमिंग अ पेरेंट इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, right? And you should be consciously aware that yes, and accept it, that I'm getting into this phase when I'm ready to accept this responsibility. Because otherwise you are going to affect the child. Yeah, ma'am, बहुत question. And there may be number of deformities which may be because of the socialization we have done. Because बहुत common question होता है, what is the right age of getting pregnant, right age of marriage? So I don't think there is an appropriate age. जब आपकी body और mind prepare हो, I think then you should go into this. Yes. Otherwise we are going to land the child into number of traumatic experience. जैसे कि अभी ये जो IITian हैं जो साधु में convert हो गए, so उन्होंने बताया very explicitly said कि हमारे इतने traumatic experiences रहे हैं childhood के, कि जिनकी वजह से it made me think कि there I need to move towards asceticism. So we need to be very consciously aware of the steps we are taking. We need to be mindful कि हम now I am getting into this stage of marriage. Now I want to become a parent. So if we start doing things with a lot of more consciousness, I think things will be much better for the generations we are going to bring. Correct. I think mindfulness जो आपने बोला वो इसी के बारे में कि आप प्रेजेंट रह के अपने decisions लीजिए. Yes. इस पॉडकास्ट में हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, जो अब बहुत इंक्रीजिंग ट्रेंड है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का हमारी सोसाइटी में. हमने देखा एक वुमेन की लाइफ में किस तरह से हर एक स्टेज में उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली. एंड आई रियली लाइक टू थैंक डॉक्टर मानिनी मैम हियर, जिनसे हमने काफ़ी कुछ टैक्टिक्स और मैनेजमेंट के बारे में बात की, which everyone can follow, both the partners can follow when the lady is pregnant and even in the postpartum period, and also about the new generations who are suffering from such kind of issues, mental problems, the way they should cope up with such issues and make a mindful decision when they are planning their marriage or pregnancy. So जिस तरह से हमने आज एक एक्सपर्ट से बात की, हम आने वाले पॉडकास्ट में आपके लिए और भी एक्सपर्ट्स और नई मदर्स को लाएंगे, जिसके साथ हम नए एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीख सकते हैं. सो आपके लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच. और जो ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that we can bring more such content to you.